आदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री श्री राधा कुंज बिहारी गौर निताय श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम राम
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. हरे पावन हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी की, श्री श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की, समावेत भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 14 और 15वां अध्याय। आज 14वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। मैं 6 गोस्वामियों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जो विविध शास्त्रों के गूढ़ अर्थों पर विचार करने में परम निपुण, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक, जन्मात्र के परम हितैषी, तीनों लोकों में माननीय हैं। वे आश्रय लेने के योग्य है, क्योंकि वे गोपियों की मनोदशा में लीन है और श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। अध्याय 14 में प्रवेश करते हैं आज। क्या अन्य आध्यात्मिक मार्ग साधन भक्ति कहलाने के योग्य है? जैसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय में पूछा जाता है कि कुछ खास अंग हैं धर्म के, आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से, जैसे ज्ञान है, वैराग्य है, और भगवान की सेवा में धन को अर्पण करना, और अनुयायी के माध्यम से की जाने वाली सेवा। जैसे अगर किसी प्रचारक के संपर्क में कोई करोड़पति हो, वो एक मंदिर बांधता है, तो वो प्रचारक को भी कुछ पुण्य मिलेगा क्या उससे? नहीं तो नहीं। इस तरह धन और अनुयायियों के माध्यम से की जाने वाली सेवा। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है जो अनेक लोग बड़ा मानते हैं, जिसको वो सद्गुण है। लोग बोलते हैं कि भक्त लोग नम्र होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए। कभी कभी भक्त अगर कोई कुछ नाराज हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं ये क्या वैष्णव है। इसलिए इन विषयों के बारे में हम चर्चा करना चाहिए कि ज्ञान, वैराग्य और धन और अनुयायी और सद्गुण इत्यादि, इनके संबंध में 64 जो विधि विधान दिया रूप गोस्वामी, इसके बारे में उन्होंने क्यों नहीं बोला, वो अभी समझाया जाएगा इस अध्याय में। ज्ञान वैराग्य। भक्ति में प्रगति हेतु ज्ञान और वैराग्य आवश्यक है। ज्ञान और वैराग्य के बिना व्यक्ति शरीर से आसक्त रहेगा और कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करने के बदले स्वयं के शरीर की संतुष्टि हेतु कार्य करेगा। देखो भाई, ज्ञान का मतलब क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान है। वैराग्य का मतलब है जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो, वर्जित चीज़ें हो, उनसे दूर रहना, वो वैराग्य है। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों की बहुत ज़रूरत है भक्ति में। अगर हमें जानकारी नहीं हो कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा, हम भूल जाते हो, तो हम बुलकट होकर वापस पुनः इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे हम। अगर वैराग्य किसी में नहीं हो, जैसे प्रसादी करना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए, अगर हम वैराग्य को अपनाते नहीं तो उसके कारण भी भक्ति में घटन आ सकता है ना। तो ज्ञान वैराग्य 64 अंगों में क्यों नहीं दिया गया है, अभी आगे देखेंगे। ज्ञान वैराग्य। पहला, शुद्ध भक्ति के अंग नहीं है। ज्ञान में व्यक्ति अपना मन कृष्ण पर केंद्रित करने के बदले आत्मा और पदार्थ में
भेद करने में केंद्रित करता है। उसका मतलब है, जैसे आप फोटो में देखते हैं, हमेशा ये लोग सोचते हैं कि मैं क्या नहीं हूँ उसके बारे में चर्चा करते हैं। न इति न इति नैति 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 बोलते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, फिर कौन हो तुम? अहम ब्रह्मास्मि, अंत में आएंगे वो। तो क्योंकि उनका ध्यान ज़्यादा मैं क्या नहीं हूँ उसके ऊपर है। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन मिथ्या के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं, मिथ्या से कैसे छूटना वो चर्चा करते हैं। इसलिए उनके समाधि जो है वो बहुत मिथ्या के ऊपर चला जाता है। वो पहला पॉइंट। दूसरा, वैराग्य में व्यक्ति अपना मन कृष्ण पर केंद्रित करने के बदले त्यागे जाने वाले विषय वस्तुओं पर केंद्रित करता है। हाँ, अरे हमको धन जन सुंदरी इत्यादि से वैराग्य होना चाहिए, ये खतरनाक है वो खतरनाक है, इस तरह माया के अनेक पदार्थों के बारे में सोच सोच कर वो मन में वो सब आविष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भगवान का चिंतन नहीं कर पाता है। हाँ, इसलिए ज्ञान और वैराग्य अनेक बार प्रतिकूल हो जाता है। जैसे वैरागी कोई व्यक्ति ये अंजन इन चीज़ों को घृणास्पद भावना से देखता है, जिसके कारण उसके हृदय पत्थर जैसे कठोर हो जाता है। अगर हृदय पत्थर जैसे कठोर हो जाएगा, उसको लेकर भगवान की भक्ति करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए मुलायम हृदय की ज़रूरत है। हाँ? तो वैराग्य एक व्यक्ति को पत्थर जैसे बना सकता है। इसलिए हमें देखना चाहिए कुछ उपाय, कैसे हम दुनिया के धन जन सुंदर इत्यादि में हम फंस न जाए, साथ साथ हमारे हृदय भी कोमल रहे, कुछ घृणा नहीं पैदा हो, ये आगे बताया जाएगा। इसी तरह ज्ञान भी जो होता है, भगवान की ज्ञान जो है, भगवान के गुणों का, लीलाओं का इत्यादि के बारे में स्मरण करने केंद्रित करने से भगवान हमारे चित्त में एक छवि बन जाता है भगवान का। वो उनकी खूबसूरती, उनके नाम, उनके गुण, उनके लीला इत्यादि सदा मन में स्फूर्ति उठता रहता है। तो ऐसे वक्त आसानी से दुनिया को भूल जाता है। तो एक बार एक डॉक्टर ने बोला कि देखो, मैं जो दवाई दूंगा तुमको एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा तुम्हारे प्रॉब्लम, लेकिन ये दवाई को पीने के पहले तुम एक बंदर जो है, एक बंदर को सोचना नहीं चाहिए बंदर के बारे में, ऐसे बोला। बंदर के बारे में मत सोचो, वो दवाई पी लो। तो दवाई का बाटल लेते ही उनको क्या स्मरण आता था? डॉक्टर ने क्या बोला? बंदर के बारे में मत सोचना, बंदर आया बेचारा उसके बाद पीता था। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना डॉक्टर के पास पैसा देता गया, डॉक्टर ठीक नहीं हो रहा मुझे, क्या बंदर के बारे में सोचेगा आपने? हाँ, वही समस्या है। बंदर को जब तक अब बोलेंगे नहीं तब तक ये दवाई काम नहीं करेगा, ऐसे बोलकर उसको धोखा दे रहा था डॉक्टर। बोलने का मतलब क्या है, इस दुनिया में जिन चीज़ों को हम नकारते हैं वो हमारे मन में चिपक जाते हैं। इसलिए उन चीज़ों को नकारने के बदले उन चीज़ों को परवाह ना करते हुए भक्ति में लग जाना चाहिए। और समाधि में जाने के लिए हमें भगवान के सुंदर स्वरूप, लीला, गुण इत्यादि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा भागवतम से चर्चा करना चाहिए। तो मन जब उसमें आविष्ट हो जाएगा भगवान की लीलाओं में, तो भौतिक पदार्थ कैसे हो जाएंगे? जैसे एक चुंबक होता है, वो आकर्षित करेगा लोहे को, लेकिन अगर चुंबक को एक लकड़ी के पास लेकर आओगे तो उसका कुछ असर ही नहीं पड़ता। इस तरह भौतिक पदार्थ जो है दुनिया में वो लकड़ी जैसे हो जाएंगे, आत्मा जो चुंबक जैसा उनसे आकर्षित नहीं होगा वो। इसके बदले भगवान की ओर आकर्षित होगा वो, ये पॉइंट है। पढ़िए। दूसरा, भक्ति को समर्थन करते हैं। आरंभ में भक्त ज्ञान और वैराग्य की सहायता से अपने मन को इंद्रियों के भंवर से मुक्त कर सकता है। ये इधर बताया जा रहा है कि हम इसको एक असिस्टेंट के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ज्ञान और वैराग्य की थोड़ा बहुत हम सहयोग ले सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे गीता में भी भगवान बीच वाले 6 अध्याय जो होते हैं, 6 से 12 भक्तियों को पूरा कर दिया, तो 12 अध्याय से गीता पूरा हो चुका था। उधर ही भगवान बोल सकते थे सर्वधर्मान् परित्यज्य, लेकिन और 6 अध्याय बोला ज्ञान योग के बारे में। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त भी इस दुनिया में भटक न जाए, उनको भी इस दुनिया का प्रकृति, काल, कर्म, गुण इत्यादि के बारे में उनको भी थोड़ा मालूमात हो। क्योंकि भक्ति करते समय कभी कभी भोले भाले भक्त इस दुनिया के इन चीज़ों में पकड़ में आ सकते हैं। इसलिए भगवान उसका भी, गुणों का भी, 3 गुणों का भी ज्ञान देते हैं ताकि भक्त को सतर्क रहना चाहिए। इसलिए
इसी तरह भागवत में भी 10वें स्कंद में पूरा हो गया सब लीला, लेकिन 11वां 12वां स्कंद में क्या किया भगवान उद्धव गीता भगवान ने, और ज्ञान के बारे में देते हैं। हाँ, क्योंकि इस तरह ज्ञान और वैराग्य ऐसा बताते हैं कि उनका सहयोग हम ले सकते हैं। हाँ, वो बताते हैं। तीसरा, भक्ति में हानि और बाधा पहुंचा सकते हैं। यही पॉइंट मैं बता रहा था, आप पढ़िए अभी। भक्ति में व्यक्ति अपने प्रेम के द्वारा भगवान को प्रसन्न करता है। इस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए भावनाओं द्वारा सरलता से प्रभावित होने वाले मृदु अर्थात कोमल हृदय की आवश्यकता होती है। ज्ञान और वैराग्य के मार्ग व्यक्ति को उदासीन हृदय के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ऐसा हृदय भावनाओं से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि भावनाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर ढकेलती है। जैसे छठे अध्याय में भगवद गीता में एक श्लोक है, समलोष्ट्राश्म कांचन है। ऐसे एक ज्ञानी पुरुष जो होता है वो पत्थर और सोना, अगर सोना का बिस्किट हो पत्थर हो, दोनों को एक समान दिखेगा। अभी प्रभुपाद जैसे वैष्णव वो क्या करते हैं, वो पत्थर और सोने के बिस्किट को एक समान दिखेंगे क्या? नहीं, वो सोने के बिस्किट को लेकर भगवान की सेवा में लगाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी पैसा को नकारते नहीं थे, लेकिन सब लक्ष्मी को सिर्फ भगवान की सेवा में लगाते थे, बाकी किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरह महान पुरुष वैष्णव भी, अगर उनको आप रोल्स रॉयस गाड़ी में लेके जाइए, मर्सिडीज बेंज में लेके जाइए, नहीं तो बैलगाड़ी में लेके जाइए, कुछ परवाह नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो किस गाड़ी में मुझे लेके जा रहे हैं वो नहीं देखेंगे, किस काम के लिए जा रहे हैं वो देखेंगे। कृष्ण की प्रचार हो सके तो कार्गो शिप में भी ऐसे कार्गो जहाज में गए प्रभुपाद जी। कार्गो का मतलब है जो सामान लेके जाने वाली जहाज था, वो उधर बैठ कर प्रभुपाद जी बुढ़े अवस्था में 70 वयस में अमेरिका पहुंच गए। देखे कितना मुश्किल है, ये वयस में कोई ऐसे कार्गो जहाज में जा पाएगा कोई व्यक्ति है? मतलब उनके लिए क्या, प्रचार काम के लिए वो अपनी जान भी देंगे। ये वैष्णव ऐसे हैं। इसलिए वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। बताते हैं कि देखो वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव की भक्ति करो, दो चीज तुमको प्राप्त होगा, ज्ञानम च और वैराग्य छ। अहैतुक ज्ञान मिलेगा और साथ साथ ज्ञानम जनयति आशु वैराग्य, वैराग्य और ज्ञान दोनों पैदा हो जाएगा अगर भक्ति गंभीरता से कोई करता है तो। इसलिए भक्तों को क्योंकि बाधा पहुंचाता है, उसका सहयोग हम नहीं लेंगे। पढ़िए। चौथा, हृदय कठोर किए बिना अनासक्ति की प्राप्ति। शुद्ध भक्ति करने के लिए व्यक्ति को भौतिक हेतु से मुक्त होने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्वतंत्रता अर्थात मुक्ति इंद्रियों से अनासक्त होने पर प्राप्त होती है। समस्या यह है कि क्योंकि ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त अनासक्ति हृदय को कठोर बनाते हैं, जो शुद्ध भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो हमें इंद्रिय, इधर आप देख रहे हैं पिक्चर में, पिक्चर में दिखाया गया है शब्द स्पर्श रस रूप गंध। ये 5 के 5 इंच इस 5 इंद्रियों को खींच रहे हैं, और इसके कारण अगर कोई इंद्रिय तर्पण में लगेगा कोई व्यक्ति, वो इस दुनिया के कर्म बंधन में फंस जाएगा, वो ऊपर उठ नहीं पाएगा वो। इसलिए तो ज्ञानी लोग इसको छोड़कर इसको नकारते हैं। सुंदर दृश्यों को नकारने के लिए जंगल में चले जाते हैं। सुंदर आवाज़ों, सुंदर सिनेमा गाना जो चल रहा है शहर में, उसको छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, तो इनसे दूर रहने के लिए। लेकिन हम भक्त लोग अगर शहर में रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, तो इस तरह के इंद्रिय तर्पण देने वाले पदार्थ निकट आएंगे तो अब इंसान को क्या करना चाहिए। इसलिए बताते हैं कि शुद्ध भक्ति करने के लिए हम लोग भौतिक पदार्थों से आसक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर हम इंद्रियों से अनासक्त हो जाएंगे तो अच्छी बात है। तो इसलिए वैराग्य अच्छा है उस तौर पर देखा जाए तो। लेकिन समस्या क्या है, ज्ञान एक इंसान को गर्वित करता है, और वैराग्य जो है एक तरह घृणास्पद भावना को पैदा करता है, हमारे हृदय को पत्थर जैसे बना देता है। अभी क्या किया जाए, कैसे हम इसकी इस्तेमाल करेंगे? पढ़िए। 5वां, युक्त वैराग्य। हृदय कठोर किए बिना अनासक्ति विकसित करने की विधि। अतः ज्ञान और वैराग्य की विधि का पालन किए बिना अनासक्ति प्राप्त करने का कोई अन्य मार्ग होना चाहिए। जैसा कि अध्याय 5 में वर्णित है,
भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। अनासक्ति प्राप्ति हेतु ज्ञान और वैराग्य का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति करने से स्वतः अनासक्ति की प्राप्ति होती है। यदि हृदय भगवान कृष्ण की सेवा करने की इच्छाओं से परिपूर्ण है तो भौतिक इच्छाओं के लिए कोई स्थान नहीं रहता। ये इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। पिक्चर में देखिए प्रभुपाद जी एरोप्लेन के ऊपर चढ़ रहे हैं। कोई बोलेगा अरे साधु बाबा लोग बड़े गाड़ी में कार में जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, क्या है? अभी देखिए ऐसे महात्मा पुरुषों को अगर बड़े अच्छे कार में भी उनको लेके जाए, नहीं तो बड़े एरोप्लेन में लेके जाए, नहीं तो एक साधारण गाड़ी में लेके जाए, वो परवाह नहीं करेंगे। उनको प्रचार के ऊपर जोर है, उनका चेतना ऐसा है। तो युक्त वैराग्य का मतलब क्या है? निर्बंध कृष्ण संबंधे। मुझे इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कृष्ण के साथ संबंधित देखूंगा मैं उसको। ये युक्त वैराग्य का मार्ग है। ये महत्वपूर्ण चीज़ जो सिखाया जा रहा है इधर। क्योंकि इस भारत में भी नहीं, सारे दुनिया में भी लोग सोचते हैं कि जो लोग धार्मिक पथ में चलते हैं वो लोगों को गरीब रहना चाहिए, कोई किसी जंगल में रहना चाहिए, कुछ कुटिया में रहना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए, पतला शरीर होना चाहिए, कुछ शहर जैसे शहरों स्थानों में नहीं आना चाहिए, वो लोग कुछ गुफा के अंदर रहना चाहिए। वो तो भगवान के पीछे पड़े हैं ऐसे लोग। बाबा लोगों को मिलने के लिए कुछ लोग जाते हैं उधर एक आध बार, लेकिन ये लोग शहर में नहीं आना चाहिए और सब चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए। वो लोग इस तरह का ये एक मत अनेक लोगों के पास है इस दुनिया में। इसके विरुद्ध रूप गोस्वामी और प्रभुपाद जी भी ये बात साबित करके दिखाया कि अरे कलयुग के ज़माने में सब जीव इतने भटक गए हैं, इतने गए गुजरे हैं, वो जंगल नहीं जाएंगे साधु महात्मा को मिलने के लिए, वो इतने अपने कामकाज में पड़े हैं। तो उनको बचाना हो तो साधुओं को शहर में आना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर है, अगर आपको तबीयत ठीक नहीं तो आप घर वालों को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। अगर घर वाले बहुत उनका बिगड़ गया तबीयत, पूरे लेटे हैं बिस्तर में, उठ नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं? डॉक्टर घर में आते हैं। यही करना चाहिए कलयुग में। सब साधुओं को शहर में जाना चाहिए, दुकान दुकान में जाना चाहिए, घर घर में जाना चाहिए, गीता का वितरण करना चाहिए। तो अगर इस तरह शहर के बीच में रहेगा कोई साधु, भटक नहीं जाएगा क्या? उसको ये नहीं हो जाएगा, आसक्त नहीं हो जाएगा? इतने स्त्रियां रहेंगी शहर में, इतने धन दौलत रहेगा, इतना सुख सुविधा रहेगा, तो इसके बीच में रहते रहते क्या वो फंस नहीं जाएगा क्या? ऐसे कोई पूछेंगे। वो फंसेगा नहीं। कारण क्या है? वो शहर में रहता है सिर्फ कृष्ण के काम के लिए, बाकी दूसरा काम नहीं उसको। वो कृष्ण के बारे में गुणगान करेगा, हरिनाम संकीर्तन करेगा, बुक को वितरण करेगा, और सिर्फ जैसे एक पद्म पत्रम विवाम्बसा बताया गया है, एक पत्ता है पद्म के, ये कमल के, वो पत्ते के ऊपर कुछ तो मोमबत्ती जैसा कुछ पदार्थ है, आप पानी डालिए वो कभी चिपकेगा ही नहीं, वो ऐसे ही रहता है। वो पानी नीचे गिर जाएगा, उसमें स्पर्श नहीं करता, ऐसे बकता रहता है। माया उसको छू ही नहीं पाती है। शहर में रहे, गांव में रहे, परवाह नहीं, लेकिन वो सिर्फ कृष्ण के लिए रहता है। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, ऐसा बताया गया। सब चेष्टा मैं करूंगा सिर्फ कृष्ण की खुशी के लिए, बस खुद के अकाउंट में मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे कैशियर है, कोई पुलिस नहीं पकड़ सकता उसको, क्यों? वो लेता है 20 लाख, देता है 50 लाख लोगों को, लेकिन बैंक को प्रतिनिधित्व करते हुए करता हो, बैंक के लिए काम कर रहा है वो। लेकिन अगर खुद के पॉकेट में 1 लाख डाल देगा तो पकड़ा जाएगा वो। इसलिए हम लोग खुद के अकाउंट में ना करते हुए भगवान के अकाउंट में करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी एक बड़े कार में बैठे हैं, कुछ गाड़ी में, तो वो बैठ सकते हैं क्योंकि वो भगवान जो भी सुविधा भेजते हैं भक्त उसको स्वीकारेगा, ताकि भगवान की काम करने के लिए वो सुविधाजनक हो। ऐसे वही पॉइंट उसको बोलते हैं, युक्त वैराग्य बोलते हैं उसको। यही श्लोक अभी बोला मैंने, अनुवाद पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। ये भक्ति के द्वारा। अनासक्तस्य विषयान, आसक्ति से रहित व्यक्ति की भौतिक इंद्रिय के विषय के प्रति यथा अर्हम उपयुज्यत, उपयुञ्जतः, यथार्हम उपयुञ्जतः, आवश्यकता के अनुसार संलग्न,
निर्बंधः कृष्ण संबंधे, बिना बंधन के कृष्ण संबंध में युक्तम वैराग्यम उच्यते, युक्त वैराग्य कहलाता है। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंध हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व अर्थात पॉजिटिवनेस से ऊपर स्थित रहता है। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनासक्तस्य विषयान् का मतलब है मैं किसी भी इस दुनिया के चीज़ों से मैं खुद की भोग के लिए मैं आकर्षित न हो जाऊं, और यथा अर्हम उपयुंजत है। हाँ? अगर कुछ चीज़ हो तो उसको कैसे कृष्ण की सेवा में लगाया जाए देखना चाहिए। अभी माइक है तो कृष्ण का गुणगान किया जा सकता है इसके द्वारा। कंप्यूटर है, अच्छा पावर पॉइंट तैयार किया जा सकता है। कैमरा है, इस तरह के लेक्चर कुछ रिकॉर्डिंग करके लोगों को कृष्ण के गुणगान पहुंचा सकते हैं। कुछ बहुत बड़ा एक व्यक्ति था, उसके पास 4 घर था एक ही शहर में, तो उन्होंने भगवान के लिए एक घर दे दिया यूज़ करने के लिए। बोला कि मैं मुफ्त में नहीं दूंगा आपको, पूरा प्रॉपर्टी मेरा रहेगा, लेकिन आप लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। हमने पूछा कितने साल? ओ नो प्रॉब्लम, 10-20 साल यूज़ कर सकते हैं, किराए में देने के बदले हम सेवा के लिए दे देंगे। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो है उन चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, उसको हमें लगाना चाहिए। हम खुद की भोग के लिए कुछ स्वीकारना, निर्बंध कृष्ण संबंधी भोग नहीं स्वीकारना चाहिए। हाँ, इस तरह करने से क्या होता है, भगवान खुद बताते हैं ना, मया तदमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। हे अर्जुन, सारे दुनिया में मेरे ही शक्तियां हैं। तो प्रभु जी बोलते हैं सब शक्तियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे एक इंसान को मालूमात है कैसे बिजली को इस्तेमाल करके सब लाइट को चमका सकते हैं घर में, तो वो सही ढंग से बिजली को इस्तेमाल करके सब लाइट चमकेगा घर में, फैन उड़ेगा, फ्रिज काम करेगा, सब कुछ होगा अच्छा। लेकिन उसको इलेक्ट्रिसिटी कैसे इस्तेमाल करना है मालूम नहीं, उसको शॉक लग जाएगा, उसको बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए माया की शक्ति जो है इस दुनिया में, उसको कृष्ण की सेवा में कैसे लगाना चाहिए हमें मालूमात होना चाहिए। नहीं तो कोई इंसान फंस जाएगा इसमें। इसलिए हमें सावधानी से चीज़ों को हम स्वीकार सकते हैं कृष्ण की सेवा के लिए, लेकिन खुद की भोग के लिए नहीं। ये पॉइंट है। जैसे कंप्यूटर है, हमको कंप्यूटर में मंदिर में कंप्यूटर देते हैं, हम इसमें अच्छा पावर पॉइंट बनाकर भगवान कृष्ण के गुणगान कर सकते हैं। इसी कंप्यूटर लेकर कोई वीडियो गेम खेलेगा, कुछ गलत चीज़ देखेगा, तो वो गड्ढे में जाएगा। इसलिए युक्त वैराग्य का मतलब है, ये वैराग्य ही है, मतलब क्या है, मैं इसका भोग नहीं करूंगा, भगवान के भोग के लिए ही है ये युक्त वैराग्य है। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। अगर कुछ चीज़ कृष्ण के सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको अगर कोई त्याग देता हो तो बुद्धिमत्ता नहीं है, ये बात है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, रेडियो जो है, जैसे टेलीविज़न जो है, इसके द्वारा लाखों लोगों को कृष्ण के गुणगान फैला सकते हैं। इसके विरुद्ध अगर कोई इन चीज़ों को नकार देगा, त्याग देगा, तो ये भगवान गुणगान में वो बहुत सीमित मात्रा में कर पाएगा वो। इसलिए उसको फल्गु वैरागी कहते हैं। पढ़िए। युक्त वैराग्य। प्रभुपाद के आंदोलन में युक्त वैराग्य के सिद्धांत का पालन कैसे किया जाता है? जैसे हम हर वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, हम इस भवन का उपयोग कर रहे हैं, झूमर का उपयोग कर रहे हैं, हम इस माइक्रोफोन का उपयोग कर रहे हैं और पेपर और प्रेस का उपयोग कर रहे हैं। हम सब कुछ उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्यों? कृष्ण के लिए। हम यहाँ सिनेमा गीत नहीं गा रहे हैं। नहीं, हम इन यंत्रों का उपयोग कृष्ण की महिमा गाने के लिए कर सकते हैं, इसलिए हमने फ़ायदा उठाया है। अन्यथा लेकिन लोग तथाकथित त्यागी है। ओह, ये लोग भौतिक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, ये लोग भौतिक लाभ उठा रहे हैं,
साथ ही साथ भौतिक उन्नति की निंदा भी कर रहे हैं। हम निंदा नहीं करते, हम केवल लोगों को हर वस्तु कृष्ण के लिए उपयोग करना सिखाते हैं। निर्बंधः कृष्ण संबंधे। हम निंदा नहीं करते, हम यह नहीं कहते हैं कि इस माइक्रोफोन का निर्माण न करें। हाँ, माइक्रोफोन उपयोग करें, लेकिन इसे भगवान की महिमा गाने के लिए उपयोग करें, तब इसका पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। यही हमारी प्रक्रिया है, कृष्ण भावना मृत। सब दिव्य बना सकते हैं। जैसे एक लोहे को आग में डालने से तप जाता है, इसी तरह माइक को भगवान के गुणगान करेंगे, ये भी दिव्य बन जाएगा। हाँ? सब चीज़ों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करके दिव्य बना सकते हैं। पढ़िए। हम किसी वस्तु को अस्वीकार नहीं करते, इसलिए रूप गोस्वामी प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः। जिस वस्तु का कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग किया जा सकता है, अगर उसे भौतिक समझकर छोड़ दिया जाए तो यह वैराग्य बहुत अच्छा नहीं है। वह त्याग, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। जैन लोगों की तरह वे कार में सवारी नहीं करेंगे, वे चलेंगे। तो हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं है। नहीं, हम मोटर कार या हवाई जहाज का लाभ नहीं उठाएंगे। ये सब भौतिक है। मैं चलूँगा। मैं क्यों चलूँ? अगर मैंने हवाई जहाज़ों का लाभ नहीं उठाया होता तो मैं इतनी तेजी से पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कैसे कर सकता था? हमें सभी लाभ उठाना चाहिए, लेकिन कृष्ण के लिए। वह कृष्ण भावनामृत है। हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन बात यह है कि हम भूल नहीं सकते। अगर भौतिक ऐश्वर्य से हम कृष्ण को भूल जाते हैं तो वह आत्मघाती है। इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। हम रॉल्स रॉयस कार चला सकते हैं, लेकिन कार के साथ अपनी पहचान नहीं कर सकते। ओह, अब मैं रॉल्स रॉयस बन गया हूँ। आप शेव्रले हैं, मैं रॉल्स रॉयस हूँ। ऐसे बकवास मत करो। रॉल्स रॉयस कार आपसे अलग है और शेव्रले कार भी आपसे अलग है। आप उनका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अपने साथ पहचान मत करो। वे भौतिक वस्तु के साथ अपनी पहचान कर रहे हैं। यही दोष है, इसे ही माया कहते हैं। तो दो चीज़ प्रभुपाद जी इधर उनके कथन में बताते हैं। एक चीज़ है, जैसे जैन लोग चलते हैं सड़क को झाड़ू मारते हुए मुख में हम पट्टी बांधते हैं, क्योंकि कुछ जीवराशियों जंतुओं को हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन वो लोग ऐसे एक स्थान से दूसरे चल के जाते हैं। अगर हमको प्रचार करना हो सारे दुनिया में, चल के कैसे पहुंच पाएंगे लोगों को? हाँ, यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी इधर। इसलिए भगवान के दिए हुए पदार्थों को, भगवान का ही एक शक्ति है वो, हाँ, भौतिक शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, दोनों किधर से आ रहा है? जन्माद्यस्य यथोन्वयात् इतरतश्चार्तेष अभिज्ञस्वराट्, पहला श्लोक है भागवत के। हम जन्माद्यस्य यतः का मतलब भगवान से ही निकला है सब कुछ। तो भगवान से निकला हुआ चीज़ों को नकारने की क्या ज़रूरत है? ये पॉइंट है। तो भगवान के लिए भगवान ने दिया है, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करो उसको, उसको नकारो मत। हमारा फिलॉसफी नकारात्मक सिद्धांत नहीं है, सकारात्मक है। दूसरा चीज़ प्रभुपाद जी बताते हैं, सावधानी से हमें सब चीज़ों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम कभी उस पदार्थों से आसक्त हो गए तो हम फंस जाएंगे। उदाहरण के लिए, जो भी खाना हो भगवान को भोग चढ़ाकर खाओ, ऐसे हम बोलते हैं। कभी कभी एकादशी के दिन 10-20 वैरायटी बनाते हैं। एकादशी का रोटी है, एकादशी का स्वीट है ना, इतने 10-12 आइटम बनाते हैं एकादशी के दिन। इंसान भूल ही जाएगा कि आज एकादशी है। पेट भर के गाएंगे 2 बार 3 बार, बोलेंगे हमने एकादशी व्रत किया है। एकादशी के दिन कभी आप उडुपी मठ में जाकर देखेंगे, इतना बड़ा मोटा ताला लग जाता है उधर उनके किचन में। एक बार मैंने पूछा कि किचन में ताला लगा, कितने बजे खुलेगा? वो बोले आज नहीं खुलेगा। क्यों? आज क्या है? एकादशी। सब उपवास करेंगे, सब माला जपेंगे, भगवान की गुणगान करेंगे, पूजा आराधना करेंगे, एक क्षण भी वेस्ट नहीं, व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। तो अगर हम उतना उपवास नहीं कर पाते हैं, जल निर्जल का उपवास, नहीं तो जलाहारी, इस तरह का उपवास नहीं कर पाएंगे हम, फलाहारी जलाहारी खाना हो, ठीक है, एक टाइम खाया हमने, लेकिन हम लोग युक्त वैराग्य के नाम में भोगना नहीं चाहिए। तो इस तरह अगर कोई बोलेगा कि मैं भगवान के लिए ले रहा हूँ करके लेकर खुद ही भोगेगा वो क्या हो जाएगा? वो उसको ही बोलते हैं ढोंगीबाजी बोलते हैं।
वो भी नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर से जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने के लिए योग्य है, कुछ व्यक्ति कुछ चीज़ है, उसको नहीं इस्तेमाल करना, हाँ, वो भी फल्गु वैराग्य है। ऐसे फल्गु बाबा क्या करते हैं, एक फल्गु बाबा थे, वो आने के पहले उनके उनके सीट के नीचे किसी ने एक सोने का सिक्का रखा, आकर बैठे, करके चिल्लाया, उठ गए, नीचे उतर गए। सब लोग क्या हो गया, क्या हो गया? आकर देखा उनके सीट के नीचे सोने का सिक्का था। वो बोले हम उसको कभी छूते भी नहीं, हम बड़े वैरागी हैं। ऐसे तो प्रभु जी बोला करते थे कि हम ऐसे वैरागी नहीं बनना चाहते हम। इसके बदले मुझे जितना पैसा तुम्हारे पास देना चाहते हो दो, मैं मंदिर बांधूंगा कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए मंदिर बांधेंगे, रथ यात्रा मनाएंगे, कृष्ण के लिए कपड़े सिलाएंगे, कृष्ण के लिए आभूषण बनाएंगे, हम उत्सव मनाएंगे, प्रसाद बनाकर हजारों लाखों लोगों को वितरण करेंगे। तो हम पैसा से हम डरते नहीं, पैसा से दूर भागते नहीं। पैसा तो लक्ष्मी ही है, लक्ष्मी किसका धर्मपत्नी है? नारायण का। तो नारायण की सेवा में लगाना चाहिए उसको। इसके विरुद्ध फल्गु वैरागी जो अपने आप को बड़े वैरागी सोचते हैं, नहीं नहीं हम इसको छूते ही नहीं है, तो उससे कुछ अहंकार आने की संभावना है। मैं इतने वैरागी हूँ, हम पैसा को कभी छूते भी नहीं हम, ये अच्छा नहीं है। भक्ति युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य में इंद्रियां और भावनाएं सक्रिय होने के कारण हृदय कठोर नहीं होता। भक्ति में भावनाएं और क्रियाएं भगवान कृष्ण की सेवा पर विशेष रूप से केंद्रित होने के कारण वे इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं ले जाती। इस प्रकार व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। भक्त वस्तुओं को भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करता है क्योंकि वे कृष्ण से संबंधित है और स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। भक्त केवल कृष्ण द्वारा प्रमाणित अर्थात सैंक्शन और पवित्र अर्थात सैंक्टिफाइड की हुई चीजें स्वीकार करता है। इस प्रकार वह कभी बंधन में नहीं फंसता। करेक्ट, बहुत सुंदर बात है। देखिए अभी क्योंकि भक्त जैसे सुंदर मंदिर बांधा है इधर संगमरमर में, मंदिर तो इतना बड़ा है, विशाल है, बड़े बड़े कमरे हैं, अच्छा सुख सुविधा है, लेकिन इधर रहते हुए भी एक भक्त आसक्त नहीं होगा। अनेक भक्त लोग जो इस तरह के बड़े मंदिर में रहते हैं, अपने कमरे में सब सामान डालकर वो इधर उधर भाग रहे हैं प्रचार काम में। ये शहर जाओ, वो शहर जाओ, इनका कार्यक्रम करो, उनका कार्यक्रम करो। मंदिर में 2 हफ्ते में एक बार आते हैं, 2 दिन रहेंगे, वापस भाग जाएंगे। इसका मतलब है वो मंदिर की ऐशोआराम सुख सुविधा जो खुद के लिए नहीं ले रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं किसको? भगवान की सेवा में। ऐसे इसी तरह इधर एक विवाह हो रहा है। विवाह, कोई व्यक्ति एक स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर विवाह कर सकता है, कन्यादान हो सकता है, भक्त भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कृष्ण भक्त है उसको सब वैरागी बनकर हिमालय में भागना होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये दोनों भी भक्ति में लग जाएंगे। अभी घर में एक आल्टर लाएंगे, भगवान की पूजा आराधना करेंगे, लोगों को भक्ति में जोड़ेंगे। इसी तरह लैपटॉप दिखाया गया है, जैसे हमने पहले बोला। तो क्यों लैपटॉप के ऊपर ये लगाया है कृष्ण माखन की चोरी कर रहे हैं? क्योंकि मतलब है लैपटॉप कृष्ण की खुशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मेरे लैपटॉप में इधर ये है राधा वृंदावन चंद्र है, उनका ही है, भगवान का ही शक्ति है, उनके ही सेवा में इस्तेमाल होगा ये पॉइंट। इस तरह करने से क्या होता है, हम चीज़ों से दूर भागते भी नहीं, हम गर्व भी नहीं करते कि हम भाग गए चीज़ों से दूर, इसलिए गर्व की संभावना नहीं है। और दूसरा चीज़ बताते हैं कि क्योंकि हमारे भावनाएं भगवान की ओर है, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, ऐसे इसलिए उस तरह की स्मृति होने के कारण इंद्रिय तृप्ति के पीछे कोई भक्त नहीं भागेगा, ये बात बता रहे हैं। क्योंकि इसके विरुद्ध अगर किसी ने त्याग दिया है दुनिया के चीज़ों को, बोले मैंने त्यागा, इधर किसका स्मरण आएगा? उसका, मैं खुद का। लेकिन हम बोलते हैं ये भी कृष्ण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी कृष्ण के लिए, ये भी कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, तो क्या रहेगा? कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण केंद्र बिंदु रहेंगे, ये पॉइंट है। ऐसा बताया गया है। और भक्त अपने खुद की तृप्ति के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा किसी चीज़ को। और जो भी भक्त इस्तेमाल करता है पहले इसको अधिकृत चीज़ होना चाहिए, प्रमाणित चीज़ होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम लोग कह सकते हैं शाकाहारी भोजन, लेकिन वो उसमें भी पाप है।
क्योंकि पत्तों को पेड़ों को पौधों को काटने से पाप लगता है, लेकिन उसको भगवान को भोग चढ़ाने से वो पवित्र हो जाता है। जैसे कर्मा फ्री डाइट बोलते हैं ना, ऐसे सैंक्शन सैंक्टिफाइड बोलते हैं। सैंक्शन मतलब है एक प्रमाणिक चीज़ है, स्वीकार सकते हैं हम। जैसे कोई विवाह कर सकता है ऐसे, तो वो सैंक्शन किया है शास्त्र ने, ठीक है विवाह करना तो कर सकते हो। लेकिन विवाह करने के बाद दोनों भक्ति में जुड़ गए, वो सैंक्टिफाइड पवित्र बन गया है, वो उनके विवाह पवित्र हो गया उसके द्वारा। इस तरह कोई जमीन लेकर घर बांधना चाहता है, ठीक है बांध लो, तुम्हारा ही जमीन है, तुमने खरीदा है, किसी के जमीन को तुम हड़प नहीं रहे हो, सैंक्शन है तुम्हारा। लेकिन घर बांधने के बाद ये गृह प्रवेश करता है, भगवान के लिए एक बड़ा आल्टर बनाता है, सब लोगों को बुलाकर प्रसाद खिलाता है, तो वो दिव्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस तरह हर एक चीज को हम पवित्र कर सकते हैं। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जो सभी वस्तुओं का कृष्ण के साथ संबंध जाने बिना उन्हें त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं है। जिस वस्तु का भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उपयोग कर सकते हैं, ऐसी वस्तु को अस्वीकार करना झूठा वैराग्य अर्थात फाल्गु वैराग्य है। इस प्रकार का त्याग भक्ति को हानि पहुंचा सकता है। भक्ति को हानि कैसे पहुंचाता है? क्योंकि ये हृदय को कठोर बनाता है। क्योंकि ये सोचेंगे कि हम ये एक पाँव में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, नहीं तो हम इतना त्याग दिया है, हम ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। तो अपने बारे में अपने को केंद्र में बनाना अच्छा नहीं है। प्रामाणिक युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का पहला भाग अनासक्तस्य है, बिना आसक्ति के। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के नाम पर हमारे स्वार्थ के लिए चीज़ों को स्वीकार न करें। दूसरा, आध्यात्मिक गुरु श्रेष्ठ सुरक्षा। हमें उनके निर्देशों को स्वीकार करना चाहिए, जो हमें भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल और प्रतिकूल चीज़ों का ज्ञान देते हैं, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तीसरा, कृष्ण क्या चाहते हैं के बारे में हमें अपनी राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि यह काफ़ी हद तक हमारी अपनी इच्छाओं अर्थात चेतन या अवचेतन पर आधारित होगी। देखिए इधर बोलते हैं प्रामाणिक युक्त वैराग्य। पहले युक्त वैराग्य प्रैक्टिस करने के पहले वैराग्य चाहिए हमको ना। जैसे ऐसे चीज़ों को हमें स्वीकार नहीं चाहिए जो हमारे लिए घातक बनेगा। जैसे कोई बोलता है अभी मेरे पास सिंपल फ़ोन है, मैं स्मार्टफोन लेने वाला हूँ और व्हाट्सएप लूँगा, फेसबुक लूँगा और सब फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इनके द्वारा प्रचार करूँगा, इंस्टाग्राम में कुछ डालूंगा। ऐसे अनेक लोग चालू किया है। ऐसे करते 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 3 महीने 6 महीने में इनका भजन में बड़ा बाधा आ गया। सुबह जपा के टाइम आश्रम में जाकर बैठकर स्मार्टफोन के साथ बैठेगा, इधर भेजो उनको भेजो। हज़ारों लोगों को मैंने भेजा, 15,000 लोगों को भेजा हमने, इतने लोगों को एकत्रित किया हमने। कुछ लोग बोलते हैं हमने ऐसे यूट्यूब में कुछ बनाकर डाला, 1 लाख लोग देखा उसको। तो इस तरह कभी कभी मीडिया के पीछे, डिजिटल मीडिया के पीछे कोई पड़ता हो, इतना पागल बन जाता है व्यक्ति। इसलिए बोल रहे हैं इधर आपको कुछ भी करना हो तो आध्यात्मिक गुरु उनके आदेश से ही करना चाहिए। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, ऐसा बताया गया। जो भक्ति के लिए अनुकूल है और आपकी स्थिति समझकर गुरु बोलेंगे ठीक है तुम यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो उसको, और तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तुम इस्तेमाल मत करो, गुरु बोल देंगे सही ढंग से। वो जानते हैं हर एक के बारे में। तो गुरु के पास अनुमति लिए बिना इंसान को किसी युक्त वैराग्य के नाम में कुछ भी नहीं इंसान ले सकता है, अच्छा नहीं। अगर अचानक आप देखते हो एक भक्त के पास कुछ आईपैड है, नहीं तो मैकबुक है, सब भक्त लोग सिंपल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इसके बाद मैकबुक है, पूछो अरे मैकबुक कैसा आया, बोलेगा किसी ने भक्त ने दिया मुझे इसलिए मैंने ले लिया, है ना, वो मुफ्त में दिया, उन्होंने भेंट के रूप में दिया। तो अगर भेंट के रूप में अनेक लोग अनेक चीज़ देंगे हमको,
अगर हम सब चीज़ों को हम ले लेंगे, बाद में उसी चीज़ों वही चीज़ें हमारे भक्ति में घातक भी बन सकते हैं। इसलिए इंसान को सोचना चाहिए, मेरे लिए अच्छा है बुरा है, सोचना बहुत आवश्यक है। अनेक लोग अनेक चीज़ भक्तों को देना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हम खुद की मत को हम सामने नहीं लाए, ये कृष्ण के लिए हम ले रहे हैं, इस तरह मत बोलना चाहिए। हम गुरु क्या बोलेंगे वो पहले देखना चाहिए, ये बात बताते हैं। हाँ, ये अभी दूसरा पॉइंट के ऊपर पहुंच रहे हैं अभी। हाँ, अगर आपके पास कोई धनी लोग हो आपके कल्टीवेशन में, और वो लोग कुछ सेवा भी करते हो, कभी कभी हमको क्या लगता है, कुछ कुछ प्रचारक प्रचार करेंगे, कुछ धनी लोगों को मंदिर में जोड़ेंगे, और वो धनी लोग अन्नदान प्रसाद दान देते हैं 10,000 लोगों को, 20,000 लोगों को। कभी कभी वही लोग बड़े मंदिर बांधते हैं, कृष्ण के लिए बांध कर देते हैं। कभी भी मंदिर के लिए 3-4 गाड़ी दे देते हैं, बड़े सुमो, तो ऐसे गाड़ी दे देते हैं, धनी लोग हैं। तो ये भक्त सोच सकता है कि मैं इधर बैठे बैठे कितना मेरे द्वारा सेवा हो रहा है, क्योंकि वो मेरे साथ वो जुड़ा है, इसलिए वो जो भी सेवा कर रहा है वो भी मैं ही कर रहा हूँ उसके द्वारा, ऐसे कोई सोच सकता है। लेकिन इधर श्री रूप गोस्वामी को बताते हैं वो ऐसा नहीं है, वो सब सेवा का अकाउंट उनके अकाउंट में जाएगा, हमारे अकाउंट में नहीं जाएगा, ऐसे बोलते हैं। आपका अकाउंट में एक ही चीज़ जाएगा, क्या है, आपने उनको भगत बनाया, उनको भक्ति में लाया, वो अच्छी बात है, सुकृति आपके लिए मिलेगा उसको। लेकिन वो पक्का भक्त बनने के बाद वो जो कर रहा है वो सब उसके अकाउंट में जाने वाला है। एक बार मुझे याद है, एक भक्त आकर मुझे बोला कि प्रभु जी ये लड़का जो यूनिवर्सिटी टॉपर है, तो मैं पहले गया इनके कॉलेज में, एक प्रोग्राम दिया, उधर जुड़ गया है, ऐसे बोले वो। तो उसके बाद और एक भक्त आया, प्रभु जी भगवान ने क्या क्या चमत्कार करते हैं भगवान हमारे द्वारा, तो मेरे द्वारा मैं 6 दिन का कार्यक्रम दिया, उसमें लड़का आया था, उधर भक्त बना, ऐसे बोले उन्होंने। और एक भक्त आया, प्रभु जी भगवान छोटे लोगों को भी लेकर बड़े बड़े कार्य करवाते हैं, तो मैं हफ्ते में 1 दिन कार्यक्रम देता हूँ, उसमें लड़का आता है रेगुलर, उधर आकर भक्त बन गया, ऐसे वो बोल रहा था। तो ऐसे 3-4 लोग अलग अलग बोल रहे थे। मैंने सोचा कि ये किसका लड़का है पता नहीं, ये यूनिवर्सिटी टॉपर तो है, सारे यूनिवर्सिटी में टॉपर है, नंबर 1 है, बुद्धिमान है। तो मैंने सोचा उसको ही पूछा जाए। मैंने उसको पूछा कि आपका प्रेरणा किधर से मिलता है। बोले प्रभुपाद की किताब ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत, प्रभु जी मैं किताबें पढ़ा, और पहले इन भक्तों को मिलने के पहले भी मैं पढ़ता था किताबें प्रभुपाद की, उसके बाद भगवान ने जोड़ दिया इन भक्तों के साथ, इनको भी मैं कृतज्ञ हूँ। लेकिन प्रभुपाद की फिलॉसफी मुझे अच्छा जमता है, बैठता है, अच्छा पढ़ता हूँ रेगुलर, प्रभुपाद को मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। बाद में तीनों को शर्म आ गया, 3-4 लोगों को। तो वो लोगों को बुलाकर मैंने बोला, देखो बास्केटबॉल गेम जो होता है, उधर एक व्यक्ति दूसरे को देता, दूसरा व्यक्ति तीसरे को देता, ऐसे एक एक करके लास्ट में एक लंबा व्यक्ति खड़ा रहता, वो क्या करता, अंदर बास्केट में डाल देता। इस तरह हम लोग क्या सोचना चाहिए अपने आप को, हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको भक्ति में खड़ा किया, सोचना गलत है। हमें सोचना चाहिए कि इनको भक्ति में आने के लिए अनेक लोगों की प्रेरणा की ज़रूरत थी, तो मैं थोड़ा प्रेरणा दिया, उनको दे दिया दूसरे भक्ति के पास। मैंने 1 टाइम प्रोग्राम किया, उसको शिक्षण के लिए दे दिया, उसके बाद हफ्ते के कार्यक्रम के लिए हमने दे दिया ऐसे। और उसके बाद वो प्रभुपाद की किताब पढ़ा, प्रभुपाद की वीडियो देखा, खुश हो गया, संस्था में आया, जुड़ गया, अभी प्रभुपाद जी से ज़्यादा प्रेरणा को मिल रहा है। तो वही वो डाल रहे हैं उनको इसमें बास्केट में, उनको मुक्त कर रहे हैं प्रभुपाद जी। इस तरह सोचना अच्छा है, सही है। हम ऐसा नहीं सोचना है कि मैं किसी को भक्ति में लाया, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, वो सही बात नहीं है। पढ़िए। यह अपनी स्वयं की भक्तिमय सेवा का अभ्यास नहीं है, अनुयायियों द्वारा की गई सेवा। एक आध्यात्मिक गुरु शिष्यों को भगवान के अर्चा, विग्रहों की पूजा करने और अन्य प्रकार की भक्तिमय सेवा करने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है। यह निश्चित रूप से उनकी अर्थात गुरु की भक्तिमय सेवा है। एक शिक्षा गुरु वो ट्रेनिंग दे सकता है, कैसे विग्रह की पूजा करना, कैसे अलग अलग भक्तिमय सेवा करना, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, मंत्रम इत्यादि। वो सही है, उनका ही है वो,
भक्ति सुकृति उनको ही जाएगा। दूसरा आगे। हालांकि शिष्य बाद में जो पूजा करते हैं वह उनकी स्वयं की भक्तिमय सेवा है, गुरु की नहीं। यदि गुरु इसे नहीं समझते हैं तो वे पूरी तरह से यह मान सकते हैं कि वे पहले से ही अपने अनुयायियों के माध्यम से इतना कुछ कर रहे हैं और इस प्रकार वे भक्ति में आत्मसंतुष्ट अर्थात कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे। हाँ, इसलिए हम लोग दूसरों को भी सेवा देना चाहिए, खुद भी सेवा लेना चाहिए, हम भी करना चाहिए। अगर कोई गुरु सोचते हैं कि मेरे शिष्य सब कर रहे हैं, तो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु कोई भी हो, बोल रहे हैं कि हमारे अनुयायी कुछ कर रहे हैं तो उनके अकाउंट में जाएगा, वो हमारे अकाउंट में नहीं आएगा, ये बात है। किसी के धन से की गई सेवा। इस तरह जब एक धनी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन के एक विशाल मंदिर के निधि के लिए एक बड़ा दान देता है तो वह दान उसकी भक्तिमय सेवा है। बाद में उस मंदिर में की गई सेवा उसकी साधना नहीं है, यह उन भक्तों की साधना है जो वास्तव में सेवा करते हैं। अगर एक धनी व्यक्ति धन देता है, वही 3 चीजें हम दे सकते हैं भगवान को। एक है तन, पहले बोलते हैं मन, मन तन धन। अगर मन नहीं कोई दे पा रहा है तो कम से कम शरीर से कुछ सेवा करो, शारीरिक सेवा करो। अगर तन भी नहीं दे पा रहा है, ठीक है, थोड़ा पैसा दो भगवान की सेवा के लिए। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी आपको क्या मालूम, हमने मन ही दे दिया भगवान को, अभी क्या पैसा देना है, अभी क्या सेवा देना है, हमने मन ही दे दिया। अरे ऐसा नहीं है, मन अगर किसी ने दिया हो उसके तन और धन भी साथ में आएगा, देखा जाता है ऐसे। अगर मन को नहीं दिया हो बाकी 2 चीज़ नहीं आएंगे। इसलिए इधर वो बात बताया गया है। और इसलिए बताते हैं कि सब सब्सिक्वेंटली कैरिड आउट देयर इज नॉट इज साधना। हाँ करेक्ट, इस यही बात है कि जो प्रचार करके लोगों को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद वो लोग जो सेवा देते हैं ये अलग अलग भक्तों के पृथक पृथक अलग अकाउंट में जाएगा। वो इसको समझकर वरिष्ठ भक्तों को भी क्या करना चाहिए, खुद कुछ के अकाउंट में भी कुछ सेवा देना चाहिए, ये बात है। इसे समझे बिना व्यक्ति आत्मसंतुष्ट अर्थात कॉम्प्लेसेंट हो सकता है। हो सकता है, करेक्ट। पढ़िए तीसरा, ये अलग दूसरा पॉइंट, अभी तीसरा पॉइंट है। सद्गुणों का अभ्यास। क्या अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्यनिष्ठा आदि सद्गुणों का अभ्यास भी साधन भक्ति का एक भाग है? सद्गुण शुद्ध भक्ति का अभ्यास नहीं है, यद्यपि वे भगवान की स्तुति करने के लिए सद्गुण जो है वो सत्वगुण पर है, विशुद्ध सत्व में नहीं है वो। यद्यपि वे भगवान की स्तुति करने के लिए किसी को अधिक लाभदायक स्थिति में रख सकते हैं, ऐसे सद्गुण सीधे भगवान कृष्ण के स्मरण का कारण नहीं बनते, इसलिए वे शुद्ध भक्ति अर्थात साधन भक्ति का अभ्यास नहीं है। देखिए ये महत्वपूर्ण बात इधर बताया जा रहा है, जैसे अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्यनिष्ठा इत्यादि सद्गुण। इस दुनिया में तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि संत हो, कोई महान पुरुष हो तो उनके अंदर ये सब गुणों की अपेक्षा करते हैं लोग। जैसे गांधी जी अहिंसा के लिए रहे, और कुछ लोग ब्रह्मचर्य संन्यास का पालन किया, जैसे इधर दलाई लामा हैं, और मदर तेरेसा है जिन्होंने बहुत अनुकंपा दिखाया व्याधिग्रस्त लेपर लोगों को। उधर इस तरह हम देखते हैं अलग अलग लोगों की फोटो इधर दिखाया गया है। ये लोगों के पास तो गुण था, बहुत अच्छी बात है और दुनिया भी इसको बहुत मानता है, सही बात है। लेकिन इन गुणों से भगवान का स्मरण नहीं होता है। अगर कोई ब्रह्मचारी हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, लेकिन ब्रह्मचारी जो है ठीक है, वो विधि विधानों का पालन करेगा। अनेक मायावादी मठों में भी अनेक ब्रह्मचारी लोग हैं ऐसे, और इस दुनिया में अनेक अहिंसक लोग हैं, अहिंसा के बारे में प्रचार करने वाले हैं, लेकिन भगवान की प्रेम, भगवान की भक्ति उसके द्वारा नहीं बढ़ता, इसलिए उसको अंग नहीं माना है भक्ति के। जैसे ये सद्गुण होते हैं, ये सब सत्व गुण में होते हैं, विशुद्ध सत्व में नहीं है, ये बात है।
क्योंकि मान लीजिए अगर कोई बहुत नम्र व्यक्ति था, पहले भक्ति मार्ग में आ गया, वो नम्रता काम में आ सकता है, वो भक्तों की ओर भी नम्र रहेगा, वो कोमल स्वभाव वाले होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक भक्ति में नहीं आता है, कुछ काम का नहीं, वो ज़्यादा उससे मतलब नहीं। जैसे नल दमयंती, उनका नाम नहीं है श्रीमद् भागवत में, क्यों? वो बहुत महान लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, धार्मिक लोग थे। और महाभारत में उनकी गुणगान इतना हुआ है, युधिष्ठिर महाराज से भी ज़्यादा गुणगान उनका है महाभारत में। लेकिन भागवत में उनका नाम भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्ति के लिए वो मशहूर नहीं थे। इसके विरुद्ध युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भक्ति के लिए मशहूर थे, इसलिए कृष्ण के साथ जो जोड़े हैं उनका ही नाम आता है भागवत में ऐसे। तो इसी तरह तितिक्षमा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। तो ये सब साधु भूषण ये अच्छे गुण हैं, लेकिन इसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण, ये स्वरूप लक्षण नहीं। स्वरूप लक्षण 26 गुण जो है वैष्णवों के, उसमें से एक ही गुण है स्वरूप लक्षण। क्या है? कृष्ण एक शरणम, कृष्ण की चरण लेना, बाकी सब तटस्थ गुण है। इसलिए अगर किसी के पास तटस्थ एक एक लक्षण हो, लेकिन भगवान की भक्ति में रुचि नहीं हो, तो उससे भक्तों को कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए हम सिर्फ इन गुणों को हासिल करने के पीछे हम नहीं पड़ते हैं, इसके बदले भक्ति के भगवान के पीछे पड़ते हैं हम, भक्ति प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब है अगर मैं कृष्ण के भक्त बन जाऊंगा, धीरे धीरे बाकी सद्गुण अपने आप आ ही जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिर, ऐसे एक श्लोक है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना, अगर कोई भगवान के अकिंचन भक्त बनता हो तो सब बाकी ये सब गुण अपने आप आ जाएंगे। जैसे सूर्य का उदय होता है पूर्व दिशा में, क्या अंधेरा को भगाने के लिए कुछ सेपरेट एक पृथक आयोजन की जरूरत है क्या? ये सूर्य आ रहा है, अंधेरा, तुम चले जाओ, अभी झाड़ू मारकर तुमको भगाएंगे नहीं है? अंधेरा अपने आप चले, सूर्य आ रहा तो अंधेरा चला ही जाएगा। इसी तरह से सद्गुण तो आ ही जाते हैं अपने आप, जब कोई भगवान के भक्ति में गंभीर हो जाता हो कोई व्यक्ति। बढ़िया। एक भक्त में सद्गुण स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। सद्गुणों से कृष्ण प्रेम स्वतः ही उत्पन्न नहीं होता, अपितु ये पॉइंट है। सद्गुणों से कृष्ण प्रेम स्वतः कभी उत्पन्न नहीं होता, इसके विरुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ किसी को, उधर से सब तरह के सद्गुण उनसे चालू हो जाते हैं। पिक्चर में देखिए किसका दिखाया है? मृगारी का दिखाया है। वो बहुत पतित एक शिकारी था, वो नारद मुनि उनको प्रचार करके भक्ति में जोड़ा, भी देखे कितने सद्गुण आ गए उनमें। सब अपने क्रूर का जीवन शैली को छोड़कर वो ऐसे एक नम्र भक्त बना। पहले तो आधा मारता था जानवरों को, बच्चों को, अभी चींटियों को भी मारना नहीं चाहता। अभी इतना परिवर्तन आया भक्ति में जुड़ने के कारण। इसलिए हम लोग प्रचार काम में भी भक्ति के ऊपर जोर देना चाहिए, बाकी सिर्फ सद्गुणों के ऊपर नहीं। अनेक बार भक्त लोग सोचते हैं कि हम अच्छे व्यवहार करेंगे, अच्छे बात करेंगे, लोग भक्ति में जुड़ जाएंगे, कृष्ण के बारे में नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, उनको ऐसे सोचते हैं। ऐसे सोच कर लोग भी निकल जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि लेकिन कृष्ण की भक्ति में कोई गंभीर हो गया हो तो उसके अंदर सद्गुण आ ही जाएंगे। आगे, अपितु कृष्ण प्रेम सद्गुणों को उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए शाकाहारी स्वतः ही भक्त नहीं होते, लेकिन भक्त स्वतः ही शाकाहारी हो जाते हैं। करेक्ट। सब शाकाहारी लोग भगवान के भक्त नहीं बनते। हाँ, ऐसे हमने सुना है कि हिटलर बोलते ना, वो भी शाकाहारी था। हाँ? लेकिन किसने लोगों को मारा? उसने 10 का वो उन्होंने मारा, 1 करोड़ लोगों को मारा उन्होंने। हाँ, यूद लोगों को मारा। हाँ? अभी वेजिटेरियन है बोल रहा है वो, लेकिन देखिए कितना हिंसा किया उसने। इसके विरुद्ध अगर कोई भक्त बनता है, जैसे मृगारी भक्त जो बन गया है, वो हिंसा नहीं करेगा। जो हिंसा नहीं करता वो भक्त नहीं है। हाँ? कोई बोलेगा कि हम शाकाहारी हैं, किसी ने बोला पर्पस, बोले क्या बड़ी बात है, बंदर भी शाकाहारी है। लेकिन आपको भक्ति में जुड़ना चाहिए, ये पॉइंट है।
शास्त्रीय प्रमाण। एक शिकारी भक्त बन गया और उसमें स्वतः सद्गुण विकसित हो गए। वो स्कंद पुराण में आता है वो बात। हाँ पढ़िए। भक्तिमय अभ्यास के 9 मूलभूत प्रकार और उनके आदर्श। शुद्ध भक्तिमय सेवा का अभ्यास करने के 64 तरीके 9 मूलभूत प्रकार की भक्तिमय सेवा के विस्तार हैं। 9 में से किसी एक या सभी 9 प्रकार के भक्तिमय अभ्यास द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के 9 मूलभूत अभ्यास और उनके आदर्श उदाहरण। पहला श्रवण परीक्षित महाराज। दूसरा कीर्तन सुखदेव गोस्वामी। तीसरा स्मरण प्रहलाद महाराज। चौथा प्रार्थना अक्रूर। पांचवा भगवान के चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी जी। छठवां अर्चा विग्रहों की पूजा पृथु महाराज। सातवां दास्यम हनुमान। आठवां साख्यम अर्जुन। नौवां पूर्ण समर्पण बलि महाराज। 10वां सभी 9 अम्बरीश महाराज। ऐसे नवविधा भक्ति फिर बता रहे हैं कि ये 64 अंगों में आ रहे हैं ये सब उसमें इधर बताया गया कि 64 अंग जो हम शुद्ध भक्ति करने के लिए करते हैं, ये सब नवविधा भक्ति से ही इसके अलग अलग अंग हैं। जैसे भगवान को अर्पित किया हुआ फूल को सूंघना चाहिए, भगवान को अर्पित किया हुआ चरणामृत को पीना चाहिए, भगवान की शिव विग्रह को प्रदक्षिणा करनी चाहिए इत्यादि। हाँ वही बता रहे हैं। अभी ये 15वां अध्याय है। 14वां अध्याय में खास करके हमने क्या क्या सीखा। एक है ज्ञान और वैराग्य 64 अंग में नहीं आता है, क्योंकि हृदय को कठोर बनाता है, इसलिए हम लोग युक्त वैराग्य को अपनाना चाहिए, वो सीखा हमने। और आगे जाकर सद्गुण और धन और अनुयायी, उनके बारे में भी हमने सीख लिया। अभी 15वां अध्याय से लेकर 15, 16, 17, 18, 19 ये 5 अध्याय में रागानुग भक्ति के बारे में वर्णन है। इधर शीर्षक दिया है रागात्मिका भक्ति, क्योंकि भौतिक दुनिया में हम लोग साधक लोग अभ्यास जो कर रहे हैं उसको रागा अनुगा बोलते हैं, क्योंकि अनुगा हम आध्यात्मिक दुनिया के जो श्रीमती राधा जी हैं, यशोदा मैया है, सीता मधुमंगल है, उन लोगों के अनुगामी बनकर हम भक्ति करते हैं, इसलिए रागा अनुगा बताया गया है इधर। लेकिन वो लोगों का नाम अनुगा नहीं है, उन लोगों का नाम क्या है? रागात्मिका ऐसे बोलते हैं उनको। नित्य सिद्ध पार्षदों को रागात्मिका नाम से पुकारते हैं। हम जैसे साधकों को राग अनुगा भक्ति बोलते हैं। पढ़िए। भाग 1 रागानुगा भक्ति में सिद्ध भक्त। रागानुगा भक्ति की परिभाषा। रागानुगा भक्ति के अभ्यास में 2 पहलू हैं। पहला रागानुगा भक्ति का अभ्यास करने वाला भक्त। ऐसा भक्त एक विशिष्ट सिद्ध भक्त की मनोस्थिति को प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ साधना करता है। दूसरा रागानुगा भक्ति में सिद्ध भक्त। ऐसे भक्त वृंदावन के शाश्वत निवासी हैं, जो एक विशिष्ट संबंध में स्वतः स्फूर्त अर्थात स्पॉन्टेनियस रूप से कृष्ण से प्रेम करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति, पहला व्यक्ति अभ्यास कर रहा है रागानुग भक्ति का, दूसरा है उस अभ्यास में परिपूर्णता प्राप्त कर लिया है। जैसे हम लोग बोलते हैं योगारूढ़ और योगारूढ़, ऐसे 6ठे अध्याय में गीता में ये 2 शब्द आता है। योगारूढ़ का मतलब है अप्रेंटिस, वो ट्रेनिंग ले रहा है अभी। योगारूढ़ का मतलब परिपक्वता को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो जो परिपक्वता को अभी तक प्राप्त नहीं किया है वो क्या करते हैं, ऐसा भक्त एक विशिष्ट सिद्ध भक्त की मनोस्थिति को प्राप्त करने के लिए सिर्फ आकांक्षा रखते हैं और साधना करते जाते हैं। लेकिन दूसरे स्तर पर जो सिद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे यशोदा माँ, यशोदा मैया, नहीं तो राधा जी, नहीं तो नंद बाबा, सीता माँ, सुदामा, मधुमंगल, ऐसे ये कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं जिनको बहुत पसंद है, उनको उनकी लीलाओं को सुनते हैं, उनसे सीखते भी हैं। कैसे उनके समझ में और गहराई से शास्त्रों से सीख कर वो भविष्य में ये भी इच्छा करते हैं कि मैं भी एक गोप बन जाऊं, नहीं तो गोपी बन जाऊं, नहीं तो कृष्ण के माँ के एक सहेली बन जाऊं। इस तरह की अपेक्षा रखते हुए सिद्ध भक्त भक्ति करते हैं।
तो इसको बोलते हैं साधना देह सिद्ध देह बोलते हैं। हाँ? साधना देह का मतलब है जो हम लोग जैसे हैं, हम साधना करते जा रहे हैं। सिद्ध देह का मतलब है उनको जग गया है, उनके आध्यात्मिक स्वरूप उनको मालूम हो गया। वो बोलेंगे नहीं लेकिन उनको मालूम हो गया ऐसे लोग हैं ऐसे। तो वो लोग उसके आगे क्या करना चाहिए, वृंदावन के एक अधिकारी, एक निवासी जो हैं उनका आश्रय लेकर उनके अनुगामी बनकर आगे बढ़ना चाहिए। संस्कृत टर्म्स रागात्मिका। रागात्मिका भक्ति वृंदावन के निवासियों में पाई जाने वाली संपूर्ण भक्तिमय आसक्ति है। रागानुगा साधन भक्ति एक भक्त का अभ्यास है जो अपनी मनोदशा को वृंदावन के निवासियों की तरह विकसित करने की इच्छा रखता है। स्वतः स्फूर्त सिद्ध भक्ति। रागात्मिका भक्ति के दो प्रकार। प्रत्येक रागात्मिका में दास्य, मित्रता, वात्सल्य और पत्नी के रूप में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष स्वतः स्फूर्त मनोदशा होती है। भक्ति रसामृत सिंधु इन चार मनोदशाओं को दो अलग अलग श्रेणियों में समूहित करता है। पहला संबंध रूप संबंध, इसमें दास्य, सख्य और वात्सल्य का समावेश है। दूसरा काम रूप इंद्रिय आकर्षण, दाम्पत्य प्रेम। ऐसे दो वैरायटी उसमें। हाँ। इन विभाजनों की वैधता के लिए शास्त्रीय प्रमाण। श्रीमद् भागवतम 6.1.31। हे राजा युधिष्ठिर, गोपियां अपनी विषय वासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से, यदुगण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध से, तुम सब पांडव कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से तथा हम सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सके हैं। गोपियों के लिए कुछ विषय वासना नहीं है, उनके लिए कृष्ण ही विषय है। वो लेकिन उनके प्रेम जो है वो काम जैसे प्रतीत होता है। इसलिए गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चेद्यादया नृपा संबंधात् कृष्णयः स्नेहात् यूयम भक्त्या वयम विभो, ऐसे नारद बताते हैं। ये श्लोक में 5 तरीके के संबंध रखा जा सकता है भगवान के साथ। या तो काम मतलब प्रेम, भय और द्वेष और संबंध और भक्ति। तो ये 5 तरीके से अगर किसी ने भक्ति की है तो निकट पहुंच जाएंगे, भगवान का ध्यान आकर्षित करेंगे वो जरूर। नेक्स्ट पर इस श्लोक में कृष्ण के प्रति कई प्रकार के स्वतः स्फूर्त अर्थात स्पॉन्टेनियस भावनात्मक आसक्ति का उल्लेख है। विषय वासना, भय, ईर्ष्या, पारिवारिक संबंध आदि। इनमें से केवल 2 आसक्तियां दोनों स्वतः स्फूर्त और भक्तिमय है। उदाहरण के लिए कृष्ण का भय स्वतः स्फूर्त हो सकता है लेकिन यह भक्ति नहीं है। इसलिए इस श्लोक में 2 प्रकार के स्वतः स्फूर्त प्रेममय आसक्ति का उल्लेख है जो शील रूप गोस्वामी के सिद्ध भक्तों के 2 श्रेणियों में वर्गीकरण, संबंध और इंद्रिय आकर्षण की पुष्टि करता है। सिर्फ माधुर्य रस को अलग रखा है और बाकी सब रिलेशनशिप जो संबंधानुगा में रखा है बाकी। अपने मन को भावना के साथ कृष्ण में लीन करें। किसी वस्तु पर मन को स्थिर करने में भावना बुद्धि से अधिक प्रभावशाली होती है। बुद्धि से अधिक प्रभावशाली। हाँ, देखिए कभी कभी हम बुद्धि से कुछ सीखते हैं शास्त्रों से, हमारे अंदर एक विवेक बुद्धि जग गया है, लेकिन कभी कभी विवेक बुद्धि भी मंद हो जाता है, हम भूल से गलत कर बैठते हैं। लेकिन अगर हमारे भावनाएं जुड़ गई है भगवान में तो बार बार भावना उठते रहेंगे कि मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मैं उनका दास हूँ, मुझे सेवा करना है, ये बता रहे हैं। इसलिए जब भावना भगवान कृष्ण का स्मरण प्रेरित करती है, उस प्रकार की साधना भगवान के प्रति प्रेम को पुनर्जीवित करने में बहुत प्रभावी है। प्रतिकूल भावनाएं भी मन को भगवान कृष्ण में आवृत कर सकती हैं और इस तरह व्यक्ति को शुद्ध कर सकती है। उदाहरण के लिए कंस और शिशुपाल
भगवान कृष्ण के प्रति भय और ईर्ष्या से ग्रस्त थे। परिणाम स्वरूप वे शुद्ध होकर मुक्त हो गए। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने गोपियों के समान ही गंतव्य प्राप्त किया। कामसा शिशुपाल बहुत दूर थे, बहुत तकलीफ दिया भगवान और भगवान के भक्तों को। वो सब दोनों को उद्धार कर दिया भगवान ने। क्योंकि भय से भी पीड़ित थे, ईर्ष्या से पीड़ित थे, फिर भी केंद्र बिंदु कौन था? कृष्ण थे। ये बात अगर ईर्ष्या भी करना हो तो किसी को, कृष्ण को बार बार सोचेगा, उसके स्मरण में ही शुद्ध हो गया वो। ये बात या समान गंतव्य। भगवान अपने भक्तों और शत्रुओं दोनों को समान प्रतिफल कैसे दे सकते हैं? इस संदेह को दूर करने के लिए शील रूप गोस्वामी सूर्य भगवान और सूर्य प्रकाश अर्थात ब्रह्म की उपमा बताते हैं। असुर और भक्त दोनों ने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया, लेकिन असुरों ने भगवान कृष्ण के केवल ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त किया, जबकि गोपियों ने कृष्ण का सर्वोच्च भगवान साक्षात्कार को प्राप्त किया। ये ब्रह्मलीन बोलते हैं। उन लोगों को भगवान की सानिध्यता नहीं प्राप्त होगा, उनको वो ब्रह्म में लीन होकर शांति 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 ऐसे रहेंगे, जैसे इधर बताया गया है। लेकिन भगवान के भक्त ब्रह्म ज्योति को भी पार करके वैकुंठ में प्रवेश करेंगे, इधर भगवान को अपने आंखों की समक्ष देखेंगे, लीला करेंगे उनके साथ। ये बात प्रभुपाद बताते हैं फर्क। असुरों ने ब्रह्म ज्योति में केवल निर्विशेष मोक्ष प्राप्त किया। इसे सिद्ध करने के लिए शील रूप गोस्वामी ने 2 संदर्भ उद्धृत किए हैं। पहला, ब्रह्मांड पुराण। जिन लोगों की भौतिक कल्मश से मुक्ति हो चुकी है, जो असुर है और जिनका वध भगवान द्वारा हुआ होता है, वे ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर ब्रह्म ज्योति के आकाश में वास करते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.87.23 साक्षात वेद भगवान को इस प्रकार संबोधित करते हैं। हे प्रभु, योगी जन आपके अंतर्यामी स्वरूप का ध्यान करते हैं, अतः वे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने की आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो लोग आपको शत्रु मानते हैं, वे बिना ध्यान किए ही वही सिद्धि पाते हैं। आपके सर्प जैसे हाथों का आलिंगन करने वाली तथा काम वासना से पूरित गोपियों ने भी वही सिद्धि प्राप्त की। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम वैदिक ज्ञान के विभिन्न अंगों के अधिपति देवता स्वरूप गोपियों का ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार हम उसी सिद्धि तो प्राप्त करने की आशा करते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे ब्रह्मा जी के गुणगान में 10वें स्कंद में अहो अतिदन्या ब्रजगोरमण्याम स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा, ऐसे बताते हैं। अहो अहो बोल रहे हैं, अनेक श्लोकों में बोल रहे हैं कि अरे देखो, ये वृंदावन नाम के गांव में रहने वाले ग्रामीण स्त्रियां जो गायों के दूध दूहती है, घर में जमीन पहुंचती है, बच्चों को दूध पिला रही है, अपने घर की जो भी सुबह से लेकर क्रियाएं करना हो तो सब करती है। ऐसे एक साधारण एक ग्रामीण स्त्रियां कैसे इस तरह ऐसी पदवी को प्राप्त किया जिधर वो भगवान के साथ समस्त स्तर पर नाच रही है, भगवान के साथ ऐसे इनका आदान प्रदान हो रहा है। बोलते हैं कि वृंदावन के माताओं के स्तन से भगवान कृष्ण नन्हे मुन्ने बच्चे बनकर दूध पिया। देखो इनकी भाग्य कितना है। यशोदा माँ का भी भाग्य था पहले, ऐसे ही भाग्य बाकी माताओं को भी कृष्ण ने दिया है। इसे और एक श्लोक में बोलेंगे वो अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बताते हैं कि देखो अहो भाग्य, ऐसे गुणगान करते हैं वृंदावन वासियों की, क्योंकि वृंदावन वासियाँ इनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए, नहीं तो सब तरह के द्वंद्वों से ऊपर उठने के लिए कुछ अलग ध्यान नहीं करना रहा, सिर्फ उनको भगवान कृष्ण के ऊपर प्रेम जगा दिया बस। इस तरह भगवान को स्मरण करते 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 वो मुक्त हो गए इस दुनिया से और भगवत धाम लौट गए। इंद्रिय आकर्षण, कामरूप। कामरूप की परिभाषा।
भक्ति रसामृत सिंधु में इंद्रिय आकर्षण दाम्पत्य प्रेम में भगवान कृष्ण की सेवा करने वाले शाश्वत सिद्ध भक्तों का नाम है। जैसे द्वारका की रानियां ऐसे। हाँ। इस पद के लिए संस्कृत शब्द काम रूप है। काम का अर्थ है काम वासना और रूप अर्थात रूप। इस प्रकार काम रूप भक्तिमय सेवा है जो बाहरी रूप से काम वासना के समान प्रतीत होती है। एक बद्ध आत्मा बाहरी स्तर पर इसे आसानी से सांसारिक समझने की भूल कर सकता है, क्योंकि स्वतः स्फूर्त दाम्पत्य प्रेम बाहरी रूप से काम वासना जैसे दिखता है। ये देखने में से दिखता है, लेकिन ये काम वासना नहीं है। जैसे एक बार एक गाय बांध कर रखा था किसान ने, लेकिन आग जल गया। हाँ, उसके झोपड़ी में जोर से चिल्ला रही थी, लोग आकर उसको बचाया, लेकिन थोड़ा बहुत जल गया उसके चमड़ा। उसके बाद कहीं भी वो आग देखती थी, वो तेजी से दूसरी ओर भागती थी, वो डर के मारे। इस तरह लोग इस दुनिया में स्त्री पुरुष के संबंध को बार बार देखकर ऐसे डूब गए हैं इसमें। जब कृष्ण राधा कृष्ण को देखते हैं वही स्मरण आता है उनको। इस तरह बोलते हैं कि इस तरह का गलत कर मत बैठो, बड़ा अपराध हो जाएगा। बड़े बड़े महात्मा पुरुष जैसे चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, ऐसे रामानुजाचार्य, ये लोग गुणगान कर रहे हैं गोपियों की, ये बात बता रहे हैं। पढ़िए। काम वासना की परिभाषा। काम वासना अर्थात काम इंद्रियों को संतुष्ट करने की तीव्र प्यास है। काम दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक काम इंद्रियों को तृप्त करने की तीव्र प्यास है। हाँ, भौतिक काम के बारे में भगवान भी कृष्ण बताते हैं, दुष्पूरेणा अनलेन च बोलते हैं। अगर पेट्रोल को डाला जाए आग में और बढ़ता है आग। इस दुनिया के काम ऐसा है, कभी तृप्त नहीं करता है, प्यास बढ़ता जाता है। आगे। आध्यात्मिक काम भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक इंद्रियों को संतुष्ट करने की तीव्र प्यास है। लोहा और सोना की उपमा। एक श्लोक भी है ऐसे, काम प्रेम दोहा कर विभिन्न विलक्षण, ऐसे एक श्लोक है। हेम आचे लोहा आर, ऐसे एक श्लोक है ये चैतन्य चरितामृत में। मतलब क्या है, काम और प्रेम का परिभाषा देते समय कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, काम जो है वो लोहा जैसा है, प्रेम जो है वो सोना जैसा है, सोने की बिस्किट है, ये लोहा का बिस्किट है। तो वैसे ही सीता माता भी बताती है रावण को, अरे धूर्त मूर्ख, मेरे ऊपर बुरा नजर डाल रहे हो तुमको शर्म आता नहीं है? मैं प्रभु रामचंद्र की धर्मपत्नी हूँ, वो समुद्र के बराबर है, तुम ये गाय के खुर में बैठने वाला पानी जैसे हो, वो बहुत बड़े मेरु पर्वत जैसे हैं, तुम एक छोटे चट्टान हो, वो गरुड़ जैसे हैं, तुम एक कौवा हो, वो सोने जैसे हैं, तुम एक लोहा हो, ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह वो चंदन जैसे हैं, तुम रेत हो, साधारण मिट्टी जैसे हो, ऐसे बताती है। तो इस तरह वो क्या तुलना कर रही है, काम और प्रेम का तुलना कर रही है। लोहा और सोना दोनों धातु हैं, फिर भी एक को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और दूसरा सामान्य है। उसी तरह भौतिक और आध्यात्मिक काम वासना दोनों समान हैं, क्योंकि इन दोनों में इंद्रियों की तृप्ति के लिए तीव्र प्यास है। लेकिन भौतिक वासना सामान्य है और आध्यात्मिक वासना अत्यधिक मूल्यवान है। आभासी स्वार्थ। भगवान कृष्ण अपने भक्त को खुश देखकर खुश हो जाते हैं, इसलिए वृंदावन के निवासी कभी कभी अपने सुख के लिए प्रयास करके प्रतीत होते हैं, हालांकि उनका असली हेतु केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। उदाहरण देंगे, 2-3 उदाहरण है। एक उदाहरण है, गोपबाल पूछ रहे हैं कृष्ण को, हे कृष्ण कृष्ण, हे बलराम बलराम, दोनों को बुला रहे हैं, बलराम तुमने आपकी शक्ति प्रकट करने में बड़ा आनंद आता है, और हे कृष्ण आप तो रोज एक असुर को मारते हो आप। लेकिन हमें लगता है कि अभी उस ताल वन में जो अनेक फल हैं, वो मीठे फल हैं, सुगंधी फल हैं, उधर से सुगंध इतना दूर हवा के द्वारा आ गया है, तो हमको इच्छा हो रहा है उसको खाने के लिए। तो उधर आचार्य ने बताया कि ये गोप बालक ऐसे बोल रखे हैं,
मतलब नहीं कि वो खुद खाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कृष्ण को खिलाना चाहते हैं। जैसे कभी कभी मेहमान होता है घर में जो यजमान होता है, उसके नाते रिश्ते सब आए हैं, उसके रिश्तेदार निकट बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, वो देखता है कि स्वीट राइस एक ही बार सर्विंग हुआ। अभी वो बुलाता स्वीट राइस, स्वीट राइस आओ इधर, मुझे थोड़ा स्वीट राइस लाओ, तो लेकर आएंगे उसको, लेकिन इसको नहीं, इसको ये बोले कि मुझे नहीं चाहिए, इनको डालो। ऐसे मेहमान को बार बार खिलाते हैं, आपने देखा ना आपने। तो अपने के लिए करके मांगेंगे लेकिन देंगे अपने मेहमान को। इस तरह के गोपाल भी बड़े बुद्धिमान हैं, बोल रहे हैं कि हमको भूख है, उनको भूख नहीं है, किसको देना चाहते हैं, कृष्ण को देना चाहते हैं। ऐसे इस तरह गोपियां भी जब कृष्ण को मिलने के लिए आती है, अच्छे तरीके से वो लोग सजाते हैं। ये छोटी गोपियां ही नहीं, नंद बाबा के जो मित्र थे गोप, बड़े गोप, उनकी धर्मपत्नियां भी नंदोत्सव में आते समय एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर, कान में नाक में सब पहनकर अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर आते हैं, क्योंकि अभी हम तो कृष्ण को देखने के लिए जा रहे हैं, तो कृष्ण हमको देखेगा, उनको अच्छा लगना चाहिए, एकदम साफ सुथरा पहन कर जाना चाहिए हमको। ये भक्ति मार्ग है। अभी भक्ति, कुछ लोग वैरागी लोग जो हैं वो कॉपीन पहन कर जाएंगे, वो कौपीन अवंता कालुभाग्य बनता वेदांत वाक्येशु सदा रमंता वही कॉपीन पहन कर वो हिमालय में बैठकर तपस्या करेंगे, लेकिन भक्त जो हैं वो अच्छे कपड़े भी भगवान की खुशी के लिए जाएंगे। जैसे हम भगवान के श्री विग्रह के सामने समक्ष जाना हो, अच्छा तिलक पहन कर जाएंगे, क्योंकि भगवान देखने वाले हैं हमको। भगवान की खुशी के लिए, देखने में स्वार्थ जैसे दिखता है लेकिन स्वार्थ नहीं है। आलंकारिक काम बढ़िए। शील रूप गोस्वामी आलंकारिक रूप से काम शब्द का प्रयोग करते हैं। वे गोपियों की सेवा की तीव्रता को बताने के लिए उसकी तुलना तीव्र काम इच्छा से करते हैं, जिसे एक बद्ध आत्मा समझ सकता है। क्योंकि बद्ध जीव जिस तरह स्त्री पुरुष के आकर्षण से भागता हो, इस तरह शुद्ध भक्त कृष्ण के पीछे भागता है। युवतीनाम यथा यूनि यूनौ युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन, ऐसे एक श्लोक है इनका, प्रभु गोस्वामी का। जिस तरह की एक युवक युवती आकर्षित होते हैं, इसी तरह हे भगवान मैं भी, मेरे मन आपकी ओर आकर्षित हो सके, ऐसे। गोपियों का काम वासना से मुक्त है। प्रमाण: उद्धव और भगवान चैतन्य महाप्रभु दो निष्ठावान व्यक्तित्व हैं, जो सांसारिक काम वासना के सभी आकर्षण से पूरी तरह मुक्त है। उनके द्वारा किया गया गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम का गुणगान यह दर्शाता है कि ऐसा प्रेम पूरी तरह से दिव्य होना चाहिए। क्या कुब्जा गोपियों के समान है? नहीं, क्योंकि यह लगभग सांसारिक या गोपियों की तरह है, कामप्राय। करेक्ट। दो बात बताया गया है इधर। एक है उद्धव बृहस्पति का शिष्य है, वेदांत पढ़ा है, सब जानता है। उद्धवो बुद्धि सत्तम, ऐसे बताया गया है, उसकी बुद्धि की सीमा ही नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी खुद है, तो ऐसे दो निष्ठावान व्यक्तित्व जो हैं, दो लोग, वो गुणगान करते हैं गोपियों की। उद्धव वृंदावन जाकर वापस लौटाकर बोलते हैं कृष्ण को, हे कृष्ण, इस श्रेणी के भक्त हमने कहीं नहीं देखा। इस तरह चैतन्य महाप्रभु गोपियों की आराध्य भगवान भजेश तनियस्तदाम वृंदावनम रम्या काजिद उपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता, ऐसे बताते हैं। तो वो एक बात है। दूसरी बात है, गोपियों के मन में क्या भावना था कृष्ण के लिए, काम था क्या नहीं। क्योंकि इधर बताते हैं कुब्जा के अंदर काम वासना था, उसको बोलते हैं काम प्राय बोलते हैं उसको। क्योंकि जब भगवान ने कुब्जा को सुंदर शरीर दे दिया तरुणी स्त्री का, और भगवान तो चले गए, लेकिन वो उनके पीछे पड़ने लगी, आइए आइए मेरे घर में आए, इस तरह है। तो उसके अंदर कृष्ण को भोगने की इच्छा थी। किसके अंदर? कुब्जा। और गोपियों के अंदर कृष्ण की सेवा देने की इच्छा थी, इसलिए कुब्जा के संबंध में बोलते हैं काम प्राय, ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद जी। लेकिन गोपियों के अंदर सिर्फ काम था। इसका मतलब है शुद्ध भावना के साथ गोपियां सेवा करना चाहा कृष्ण को, और कुब्जा के अंदर थोड़ा गलत भोग करने की भावना था, और वो भी शुद्ध हो गया। कृष्ण के श्री चरणों की धूली प्राप्त करके कुब्जा भी पावन हो गई उसके बाद। लेकिन बोलने का मतलब कहा, गोपियों का भावना काम जैसे दिखता है, उसमें एक वेग है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे उसको पढ़कर हमें लाभान्वित होना चाहिए कि हम भी इस तरह के लोग बढ़ाए हमारे हृदय में। ये बात है।
तो ये 15वां अध्याय है ये। अभी आगे जाकर 16वां 17वां अध्याय हम अगले सत्र में सुनेंगे, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की और भक्तवृंद की। थैंक यू वेरी मच।